ٹین ایج یا نوعمری میں نوجوان بہت سے جذبات اور احساسات سے گزرتے ہیں۔ اس سلسلے میں والدین کس طرح ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں، آئیے جانتے ہیں اس گفتگو میں۔ بچے چاہے دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، ٹین ایج کو پہنچتے ہیں تو ان میں بہت ساری تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، ذہنی طور پر، رویوں کے حساب سے اور جسمانی طور پر بھی۔ گیٹنگ ٹو نو ٹین ایج بیہیویئر، آج ہم نے اسی ٹاپک پر بات کرنے کے لیے اپنے ساتھ ایک گیسٹ کو مدعو کیا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ آج یہاں موجود ہیں نازیہ خان۔ نازیہ خان کلینکل سائیکالوجسٹ ہونے کے ساتھ ارلی چائلڈہڈ انٹرونشنسٹ بھی ہیں اور ایک بہت زبردست فوڈ بلاگر ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی شو پلگ ان ود سمینا۔ ہاؤ آر یو ٹوڈے؟ وعلیکم السلام. First of all, Samina, thanks for having me on your show and you are doing an amazing job. تھینک یو سو مچ، تھینک یو۔ سو ٹینس کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں نازیہ کہ جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان میں کچھ تبدیلیاں آتی ہیں، ان کے رویے بھی تھوڑے سے چینج ہو جاتے ہیں۔ سم ٹائمس بچے چاہے لڑکیاں ہوں یا لڑکے جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان میں تھوڑا سا ڈس ریسپیکٹفل فیل ہوتا ہے۔ سو آپ اس چیز کو کیسے دیکھتی ہیں؟ اچھا، فرسٹ آف آل آپ نے ٹاپک بڑا اچھا پک کیا ہے کیونکہ یہ ایسا ٹاپک ہے جس سے ہر ٹین ایجر اس سے گزرے گا اور جو پیرنٹس ہیں سب لوگ اس کے ساتھ ریلیٹ کر پائیں گے کہ صرف وہ ٹین ایج نہیں ہوتی، انفیکٹ جو پہلے کا پیریڈ ہوتا ہے اس میں بچے کو کیا انوائرمنٹ ملی ہے، ان کی بانڈنگ رہی ہے، بانڈنگ نہیں رہی، وہ سارے فیکٹرز بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ ٹین ایج میں بچہ جو تھوڑا اس کا نا ایکسپریشن زیادہ نظر آتا ہے، اس چیز کو وہ آبویس زیادہ ہو جاتی ہے۔ اچھا، جب بچہ آپ کو لگے کہ تھوڑا سا وہ اس کی آف کورس جو باڈی میں اس کی کچھ ہارمونل چینجز آ رہی ہوتی ہیں، وہ ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کو بچے کو کیسے ہینڈل کریں۔ سب سے پہلے اگر بچہ آپ کے ساتھ کوئی آرگومنٹ کر رہا ہے یا بدتمیزی کر رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ڈس رسپیکٹ شو کر رہا ہے، تو آپ اپنے آپ کو بڑا کام رکھیں۔ آپ کا کمپوزر، آپ کا کام ہونا بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ اپنے آپ کو کمپوز رکھ کے جب بچے سے بات کریں گے تو بچہ بھی اسی حساب سے آپ کو رسپونڈ کرے گا۔ آپ تھوڑا سا ڈسٹریکشن کو یوز کریں، کوئی ایسا واقعہ سنا دیں، جوک کر دیں، کوئی ایکٹیویٹی شیئر کر دیں، کچھ اس طرح کی وہ تھوڑا سا ڈسٹریکٹ ہو جائے تو اس کا پرسپیکٹیو بھی بدل سکتا ہے۔ سچویشن کو لائٹ کرنے کی کوشش کریں بجائے کہ آپ بھی تھوڑے سے اپ ٹائٹ ہو جائیں، آپ بھی اس کے ساتھ بات کریں۔ اگر اگریسو ہو جائیں گے تو ظاہر ہے وہ بچے کا بیہیویئر اور زیادہ اگریسو ہو جائے گا۔ اس سچویشن میں تو آپ کی باڈی لینگویج بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ باڈی لینگویج سے ایک ڈس رسپیکٹ شو ہو رہی ہے تو وہ بھی بچے کو وہی میسج جائے گا جو آپ وربلی ایکسپریس کرتے ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ سم ٹائم بچہ آپ کے ساتھ روڈ ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ روڈ نہ ہو رہا ہو، وہ آپ کے ساتھ ویسے ایک کسی بات پہ آرگیومنٹ ہو رہا ہے، تو آپ اپنی چیک یور انڈرسٹینڈنگ جی، کیونکہ بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں اور پیرنٹس کو بھی عادت نہیں ہوتی ان کے ان رویوں کو دیکھنے کی۔ بچے ہوتے ہیں ان کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے، تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو یہی رویہ چینج ہو جاتا ہے، تو پیرنٹس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے سم ٹائمز۔ جتنا بچوں کے لیے امپورٹنٹ ہے، آئی تھنک پیرنٹس کے لیے بھی اس چیز کو سمجھنا اور اس کو کیسے ڈیل کرنا وہ بھی ایکولی امپورٹنٹ۔ یہ بھی ایک آرٹ ہے۔ تو آج کل انٹرنیٹ ایکسیس ہے بچوں کے پاس، جس لائک سیل فونز ہیں، لیپ ٹاپس ہیں، اور ہر طرح کی ٹیکنالوجی بچوں کے آج کل ہاتھ میں ہے، تو یہ کتنا افیکٹ کرتی ہے بچوں کے رویے چینج کرنے میں، اور بچوں پہ ان کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ بڑا اچھا آپ نے سوال پوچھا ہے کیونکہ ٹائم بڑا بدل گیا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے صرف ٹین ایج میں نہیں، چھوٹی سی ایج میں بچے کے ہاتھ میں سیل فون ہوگا۔ اس سے یہ ہوا ہے کہ بچوں میں نا جو ایک وربل کمیونیکیشن ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ فیملیز میں پیرنٹس اگر بچوں کو کمرے میں ہیں، روم میں، تو آواز دے کے بلا رہے ہیں تو بچے بجائے جواب دینے کے وہ ٹیکسٹ کے تھرو آپ کو جواب دیں گے۔ اور اس کے لیے میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں کچھ چیزوں کو ہم لمٹ نہیں کر سکتے، وہ ایک نیڈ آف ٹائم ہے، آپ کے پاس سیل فون بھی آئے گا، انٹرنیٹ بھی آئے گا، مگر یہ ہے کہ آپ بچے کے ساتھ وربل کمیونیکیشن بڑھائیں۔ پیرنٹس ٹائم اپنا نکالیں اور بچے کے ساتھ جیسے اس کی روٹین کے بارے میں بات کریں، وہ اسکول سے آیا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ورکنگ وومن ہے، ٹائم نہیں ہے، اور کچھ مدرز ہوتی ہیں جو سارا دن بچے کے ساتھ ہوتی ہیں۔ کوالٹی از مور امپورٹنٹ دین کوانٹٹی۔ بعض دفعہ مدرز سارا دن گھر میں ہوتی ہیں بچوں کے ساتھ، لیکن وہ بچوں کے ساتھ وہ کوالٹی ٹائم نہیں گزار پاتی، اور بعض دفعہ ورکنگ وومن وہ آ کے آدھا گھنٹہ بھی اگر بچے کے ساتھ بیٹھیں گی، جو فل ٹائم وہ بچے کو ڈیڈیکیٹ کر رہی ہیں، جس میں آپ کا سیل فون سائڈ پہ ہونا چاہیے، آپ کی ٹی وی نہیں دیکھ رہے، بچے کو یہ لگے کہ یہ ٹائم بالکل میرا ہے۔ اچھا، دوسرا لمٹ دیئر اسکرین ٹائم، سیل فون ٹائم، اور اس میں بہت کنسسٹنٹ رہیں۔ آج آپ نے بچے کو الاؤ کر دیا، کل آپ اس کو منع کر رہے ہیں، تو بچے کو ایک بڑا ڈوئل میسج آ رہا ہے، اور تھوڑا سا چیک کریں کہ
ब्राउज हिस्ट्री कि बच्चा किन साइट्स पे जा रहा है, क्योंकि बच्चे को ये ना लगे कि आप इंस्पेक्ट कर रहे हैं उसके, आप उस पर छापा मार रहे हैं, आप उसको ओपन कम्युनिकेशन में रखें, आप उससे बात करें कि तुम्हारी से क्या तुम्हारे लिए अप्रोप्रिएट है क्या नहीं है, तो फ्रेंडली मैनर्स में उससे बात करें, बजाय उसको लगे कि मुझे हर वक्त एक मेरे पे एक नजर रखी जा रही है, इंस्पेक्ट किया जा रही है। बच्चे को इनकरेज करें, घर में बैठा है तो टेक्स्ट में मुझे जवाब मत दो, मुझे खुद आकर बात करो। कोई अगर बात कर रही है, बच्चों ने कोई बात आजकल मनवानी होती है या कुछ कोई रिक्वेस्ट होती है तो वो टेक्स्ट में आ रही होती है, तो इस चीज को डिस्करेज करें। और नाज़िया थोड़ा सा ये भी होता है कि चूंकि एज बढ़ रही है तो अब जाहिर है हम उनको इतना कंट्रोल नहीं कर पाते जितना कि हम उनके बचपन में उनको किया करते थे, और एज के हिसाब से उनको थोड़ी बहुत स्पेस भी देनी चाहिए, बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं कर देना चाहिए कि उनको फील हो कि हमें बहुत ज्यादा अबंडन किया जा रहा है। कंट्रोल फ्रीक एनवायरनमेंट देंगे तो बच्चा वैसे ही बहुत वो हो जाएगा कि हर वक्त उसको बिल्कुल, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका फ्रेंड्स का टाइम हो, इंटरनेट पे भी एक्सेस होनी चाहिए आजकल, मतलब आप इन चीजों को कम्प्लीटली खत्म नहीं कर सकते बच्चे की लाइफ से, थोड़ा सा बैलेंस रखना चाहिए। तो वो नाज़िया जब हम फील करते हैं बच्चे समटाइम्स झूठ भी बोलते हैं किसी ना किसी बात पर, और कोई सच है वो छुपा रहे होते हैं, हाइडिंग द फैक्ट्स, इसको कैसे हमको मैनेज करना चाहिए और किस तरह उनकी इस आदत से छुटकारा पाना चाहिए? हर एक की फैमिली में लोग रिलेट कर सकते हैं कि बच्चा एक स्टेज आती है आपसे चीज़ें छुपाना शुरू कर देता है, आप पे इतना ट्रस्ट नहीं करता। तो अगेन आपका बच्चे के साथ रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उस पर एक उससे शुरू से एक ट्रस्ट की इन्वायरमेंट दें। अगर वो कोई अपनी मिस्टेक बताता है ना, चाहे वो छोटा बच्चा या टीन एज में, उस वक्त रिएक्ट ना करें, ये बात मैंने बताई तो इस पर तो मुझे डांट पड़ गई, इस पर तो मुझे ये तो मैंने बहुत बड़ी कोई गलती कर दी है, तो उस वक्त थोड़ा सा उसको लिसन करें जो वो बता रहा है। आप बच्चे के साथ अपनी भी लाइफ शेयर करें, झूठ बोलना और जो डिसऑनेस्टी है वो खत्म हो जाएगी, वो आपको हर बात बताना शुरू करेगा। जी सही, और अगर आप खुद भी झूठ कम बोलें बिल्कुल, तो आपका एग्जैक्टली बच्चे भी वही सीखते हैं जो वो देख रहे होते हैं। बिल्कुल। ये भी नाज़िया देखा जाता है कि तरबियत की सारी जिम्मेदारी माँओं पर डाल दी जाती है, और पेरेंट्स में जो फादर हैं वो इस चीज़ से बिल्कुल बरी हुई जिम्मा हो जाते हैं कि बस कमाना है, ये हमारा काम है, और बच्चों की तरबियत करना ये आपका काम है। तो इस चीज़ में आप फादर्स के हवाले से क्या कहना चाहेंगी कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बच्चों के हवाले से, टीनेजर्स के स्पेशली? फादर का रोल भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मदर का है, लेकिन हमारे यहाँ ये समझा जाता है स्पेशली हमारे कल्चर में कि शायद मदर ने सारा दिन बच्चे को टाइम देना है या उसकी ट्रेनिंग में मदर का रोल है, हालांकि फादर का रोल भी इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट। अगर पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तो अक्सर मदर चली जाती हैं, फादर अवॉइड करते हैं कि वो, और उनका एक इमेज जो आता है ना बड़ा अथॉरिटेटिव फिगर का आता है। अक्सर बच्चे ये होते हैं कि बस मदर के साथ कम्युनिकेशन है, फादर के साथ नहीं, तो फादर के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे के साथ इस तरह से टाइम गुजारें, उसकी कोई फेवरेट एक्टिविटी है वो साथ करें, उसको मूवी पर लेकर जाएं, डिनर पर लेकर जाएं। जब वो सब अच्छे मूड में होगा तो बच्चा रिसेप्टिव होगा, वो सुनने के मूड में होगा, जो बात आप उसे समझा रही हैं वो उसको उस बात को समझेगा। मदर के लिए भी अगर कोई सिंगल मदर्स हैं तो उन पर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो फादर वाला रोल भी उनको प्ले करना पड़ता है। फादर्स फिर भी बरी हुई जिम्मा नहीं हो सकते, अगर सिंगल पेरेंट भी हैं तो भी फादर कहीं ना कहीं तो हैं, तो उनको चाहिए कि बच्चों को टाइम स्पेंड करें उनके साथ, क्योंकि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करने में मेरा ख्याल है फादर का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। उनको अपने प्यार और तवज्जो से बच्चों को ज़िंदगी में आगे की चीज़ें, आगे की मुश्किलात के बारे में बताने के लिए फादर्स को ये रोल ज़रूर प्ले करना चाहिए कि ज़िंदगी की मुश्किलात से उनको आगाह करें ताकि वो कॉन्फिडेंटली आगे लाइफ में प्रोलॉन्ग कर सकें। बिल्कुल, कुछ चीज़ें जैसे मदर अच्छे तरीके से बता सकती हैं, कुछ फादर अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में। नाज़िया, टीन एज के साथ एक और चीज़ एसोसिएटेड है, वो है अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन। जब बच्चे बड़े होते हैं तो ये नेचुरल चीज़ है जो हमारे बच्चों में हम देखते हैं, ख़ुद हम भी इस फेज से गुजर चुके हैं। ये कैसे बच्चों को बताना चाहिए कि वो इस चीज़ को हैंडल करें, या फिर खामोश रहना चाहिए, या फिर उनसे कुछ बच्चे शर्माते हैं, कुछ पेरेंट्स शर्माते हैं, तो किस तरह इस चीज़ को हैंडल किया जाए? सबसे पहले तो बच्चे के साथ वही मैं कहूँगी ना कि आप एक ओपन कम्युनिकेशन है, क्योंकि बच्चा वही काम अगर आपसे छुप कर रहा है, आपको पता ही नहीं, तो आप बच्चे को गाइड ही नहीं कर सकते, उसको प्रॉपर तरीके से बता ही नहीं सकते कि क्या तुम्हारे लिए इस एज पे सही है क्या नहीं है। तो बच्चा जब आपको बताएगा ये सारी चीज़ें तो फिर आप उसको प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि क्या हमारी कल्चरल बाउंडिंग्स हैं, क्या हमारी दीन की तरफ से हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, और उसको आप मस्जिद में ले जाएं। अगर बच्चा आपके साथ कंफर्टेबल फील कर रहा है तो आप खुद आप बात कर सकते हैं, अगर नहीं तो स्कूल में क्लासेस होती हैं,
काउंसलर से बात कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को एक टैबू ना बनाएं। यहाँ तो जैसे को एजुकेशन है, अगर वो बात कर रहे हैं वो, तो ऐसा नहीं कि उन्हें लगे कि वो अगर अपोजिट सेक्स से बात कर रहे हैं तो ये कोई बहुत मायूब सी बात है, बहुत कोई अजीब सी बात है। तो उस चीज़ को एक नेचुरल तरीके से होने दें और एक सर्टेन एज पे एक्सपेक्ट करें कि बच्चे में ये या टीनेजर में ये चीज़ आएगी, उसको डिस्कस करें। हर चीज़ का हल डिस्कस करना है, कम्युनिकेशन है। तो जब वो करेंगे फ्रेंडली आप होंगे तो बच्चा बजाय इसके कि किसी और को अपनी Exactly. पर्सनल बातें शेयर कर रहा है, वो आपके साथ शेयर करेगा, तो ये ज़्यादा वो आपके लिए बेहतर है कि आपको बातें पता चल रही हैं। यहाँ से एक फैक्टर है कि अगर आप ये देखें कि उनके फ्रेंड्स कौन से हैं, अगर आप चाहें और वो बच्चा भी चाहे तो आप उन फ्रेंड्स को अपने घर इनवाइट कर सकते हैं, उनके साथ मिलके बात कर सकते हैं। आप गेटिंग टू नो देयर फ्रेंड्स, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, किनके साथ हैंग आउट कर रहे हैं। स्पिरिचुअल वैल्यूज सिखाएं, उसकी तो एक अपनी वैल्यू होती है। बच्चा जितने अपने दीन की तरफ, इस्लाम की तरफ ज़्यादा होगा तो वो खुद भी आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को समझेगा। तो ताकि उनको बच्चों को पता चले हलाल और हराम की एक तमीज़, ये भी सिखाना हमारे फ़राइज़ में शामिल जी, क्योंकि दोनों कल्चर्स को देखते हुए हमें चलना पड़ता है। बहुत सारे पेरेंट्स ने ओवरकम किया इस चीज़ को। अगर हम उनको कंप्लीट फ्रीडम दे देंगे तो, और वो अपनी ही मर्जी करेंगे, तो अपनी लेसन नहीं करेंगे, तो क्या थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस भी होनी चाहिए? कुछ चीज़ें हैं उसमें, बात चीज़ें उसमें कॉम्प्रोमाइज़ की गुंजाइश नहीं होती। आप घर में कोई एक सेट रूल्स बनाएं कि बच्चे को पता हो कि मुझे ये काम करना है या ये काम नहीं करना, और उसको आप घर में किसी प्रोमिनेंट जगह पे, लाइक फ्रिज पे या किसी कहीं ऐसे कि बच्चा आते जाते बच्चे की भी नज़र पड़े और आपकी भी पड़े, और उसमें आपने बहुत परसिस्टेंट होना है। ये नहीं कि आज आपने अगर टीवी का स्क्रीन टाइम उनका लिमिट किया है, कंप्यूटर या टीवी के आपने 1 घंटा देखना है, और आज बच्चा 1.5 घंटा देख रहा है, आप गुजरते हुए आपने देखा, आपने कहा चलो कौन बहस में पड़े, आज जाने दो, और अगले दिन आपने कहा नहीं, आपने तो सिर्फ 1 घंटा बात हुई थी। तो बच्चे को बड़ा ये ऐसा मैसेज मिलेगा कि वो बच्चा उसको फॉलो नहीं कर पाएगा। तो अगर आपने कोई रूल्स बनाए हैं उस पर आपको बहुत स्ट्रिक्ट होना है। हम जो भी काम करते हैं, चाहे हम उनको थोड़ी सी फ्रीडम दें, चाहे हम उनके साथ स्ट्रिक्ट हों, तो हमारे माइंड में यही होता है कि हम बच्चों की बेटरमेंट के लिए ही कर रहे हैं। और बिल्कुल बच्चों को भी ये मैसेज समझ आ जाता है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उसको जो रूल्स बनाए हैं उसको आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ये समझिए कि शायद माँ खुद ही सीरियस नहीं है, खुद ही सीरियस नहीं है हमें समझाने में, तो वो फिर आपको बहुत लाइट लेते हैं। हाँ, सो ओवरऑल देखा जाए नाज़िया, तो आप किस तरह इन तमाम चीज़ों को देखेंगी, और आखिर में आप हमारे व्यूवर्स के लिए क्या बताना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी? बस 2-3 पॉइंट्स का ख्याल रखें, जहन में रखें। क्रिएट ट्रस्टिंग रिलेशनशिप विद योर किड्स, और दूसरा उनकी एज की जो चीज़ें हैं वो जहन में रखें कि आप भी उस एज से गुजरे हैं, तो वो चीज़ें जहन में रख के बच्चों के साथ डील करें। दूसरा, तीसरी चीज़ रिस्पेक्ट। बच्चे को ये ना लगे कि कोई अगर बात हो रही है, हमें ह्यूमिलेट किया जा रहा है, हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है, और हमें लग रहा होता है तो बच्चा है, इसको तो शायद पता नहीं, हमने तो हंसते हुए कह दी। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चे को लगे बहुत सेंसिटिव होते हैं कि हमें भी वही रिस्पेक्ट जो हम एक्सपेक्ट करते हैं हम बच्चों को दें, और वही डेफिनेटली उनके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होगी। थैंक यू सो मच नाज़िया फॉर कमिंग, और बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हर कोई रिलेट कर सकता है। नहीं, थैंक यू समीना, आपने मुझे अपने शो पे बुलाया और इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने का मौका दिया, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। सो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का शो। आई होप यू लाइक इट। और अगर बच्चों के हवाले से कोई बात आप शेयर करना चाहें या पेरेंटिंग के बारे में आप कुछ शेयर करना चाहें तो कमेंट के थ्रू आप हमें बता सकते हैं। डू शेयर, लाइक एंड कमेंट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।